اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج میں ریاست گجرات کے سورت شہر میں ہوں، اور آج سب سے پہلی مسجد یعنی مبارک مسجد صابری نگر پھلواڑی میں بعد نماز ظہر پہلی مجلس ہوگی، اور انشاءاللہ بعد نماز عصر والک کی جمعہ مسجد میں، جونی والک جو ہے وہاں کی جمعہ مسجد میں عصر کے بعد بیان ہوگا، اور پھر انشاءاللہ اہم مجلس بعد نماز تراویح سورت شہر کی بڑی مسجد کالی پل امبا واڑی میں بعد نماز تراویح بہت ہی اہم خطاب ہوگا۔ سورت شہر اور آس پاس کے لوگ اس پر دھیان دیں، اور رات میں تراویح کے فوراً بعد کالی پل امباواڑی کی بڑی مسجد میں مجلس میں شریک رہے۔ خیر، یہاں سے بھی میں آڈیو کی شکل میں، آواز کی شکل میں آپ تک خبریں روانہ کر رہا ہوں۔ دعائیں کیجیے کہ اللہ میرے رمضان میں روزوں کی حالت میں سفر بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کر رہے ہیں، دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالی ہماری اس خدمت کو، دینی علمی خدمت کو اللہ تعالی قبول فرمائے، اور اللہ تعالی خوب طاقت، قوت، حوصلہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ابھی ابو عاصم اعظمی کا بیان جو انہوں نے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں دیا تھا، ابھی اس پر ہنگامہ ختم نہیں ہو پایا تھا کہ بی جے پی پر سوامی پرساد نے حملہ کر دیا، اور بی جے پی پر حملہ کرتے ہوئے سوامی پرساد نے کہا کہ بی جے پی اس وقت ماحول کو خراب کرنے کے لیے باقاعدہ گودی میڈیا کے ذریعے سے ماحول کو خراب کر رہی ہے، اور پھر انہوں نے بڑا بیان دیا، سوامی پرساد نے کہا کہ ناتھو رام گوڈسے سے تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بہتر تھے۔ بہت بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ ناتھو رام گوڈسے سے تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بہتر تھے۔ کیا سوامی پرساد موریہ کے بیان پر بھی ایک تنازع شروع ہو جائے گا؟ سماجوادی لیڈر ابو عاصم اعظمی کے بیان سے پیدا ہوتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے مہاراشٹر میں اورنگزیب کی قبر پر سیکورٹی سخت کر دی گئی۔ اس درمیان بی جے پی حکومت میں کابینہ وزیر رہے، یعنی کیبنٹ منسٹر تھے سوامی پرساد موریہ۔ اب انہوں نے ابو عاصم اعظمی کی حمایت میں بیان جاری کرتے ہوئے خود ایسا بیان دیا ہے جس پر ایک تنازع بڑھنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے بی جے پی پر حملہ آور رخ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ناتھو رام گوڈسے سے بہتر تھے اورنگزیب۔ اپنی جنتا پارٹی کے سربراہ سوامی پرساد موریہ نے بی جے پی پر ملک میں نفرت کے بیج بونے کا الزام عائد کیا، اور انہوں نے کہا کہ بی جے پی لیڈران ملک میں نفرت کا بیج بو رہے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک کے بعد ایک ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔
नाज़रीन दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने हफ्ते को एक भाषण में ये कहा कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा IAS IPS बनेंगे तो मुल्क को फायदा होगा। नितिन गडकरी का ये बयान आया है। नितिन गडकरी ने हफ्ते को कहा है कि वो अवामी बातचीत में मजहब और जात को नहीं लाते। उन्होंने बताया कि वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि लोग समाज की खिदमत को सबसे ऊपर मानते हैं। इस दौरान गडकरी ने अपने इंतखाबी दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। गडकरी ने कहा कि उन्होंने ये ख्याल इंतखाब हारने या वजीर का ओहदा चले जाने की परवाह किए बगैर जारी रखा। नागपुर के नंदा मुद्दास इंस्टीट्यूट के कन्वेंशन में हिस्सा लेते हुए गडकरी ने कहा कि हम कभी इन चीज़ों यानी मजहब और सियासत को लेकर तफरीक नहीं करते। मैं सियासत में हूं और यहाँ बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन मैंने तय किया कि मैं अपने तरीके से काम करूंगा और ये नहीं सोचूंगा कि मुझे कौन वोट देगा और कौन नहीं। नाज़रीन तीसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि महाराष्ट्र सरकार ने मीडिया पर नजर रखने के लिए मॉनिटरिंग सेल के लिए 10 करोड़ का बजट तय किया है। महाराष्ट्र हुकूमत ने रिपोर्ट की निगरानी और रियासती हुकूमत के बारे में मनफी या गुमराहकुन खबरों पर कार्रवाई करने के लिए 10 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से एक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर कायम करने का फैसला किया है। रिपोर्ट में एक हुकूमती करारदाद का हवाला दिया गया जिसमें खबरों का तज्जिया एक ही छत के नीचे करने की जरूरत का जिक्र किया गया था। ये सेल एक आजाद प्रोजेक्ट होगा और तमाम प्रिंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर खबरों को ट्रैक करेगा। एक पेशावर और निजी मुशावरती एजेंसी खबरों को मुरतब और तज्जिया करेगी। GR के मुताबिक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस एक तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा और इसी तरह के मॉडल्स का मुताला करेगा अगर कोई है जो दूसरी रियासतों के जरिए कायम किया गया है। सेंटर को कायम करने और चलाने के लिए जिम्मेदार एजेंसियों का इंतखाब मुबैना तौर पर 1 साल के एग्रीमेंट के लिए टेंडरिंग के जरिए किया जाएगा, जिसमें कारकर्दगी की बुनियाद पर 2 साल तक तौसीक की जा सकती है। इसके अलावा मीडिया कवरेज की माहाना और हफ्तावार रिपोर्ट जिलावार तरीके से तैयार की जाएगी। यानी यह खबर बता रही है कि सरकार को डर है। अब महाराष्ट्र सरकार मॉनिटरिंग सेल के लिए 10 करोड़ का बजट तय कर रहा है जो मीडिया पर नजर रखेगा। मीडिया पर नजर रखने का मतलब यह है कि बस यूं समझिए शॉर्ट में कि हुकूमत के खिलाफ खबरों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। नाज़रीन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, शिवसेना के दबंग कदआवर नेता लीडर संजय राउत ने कहा कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और RSS का काम फसाद पैदा करना और मसाजिद पर हमला करना है। संजय राउत ने विनोद बंसल के मुतनाज़ा बयान पर जवाबी हमला करते हुए कहा है कि मुल्क तकसीम की जानिब बढ़ रहा है। मुझे आज की सूरत हाल 1947 के पहले के हालात जैसी लग रही है जब पाकिस्तान बनाया जा रहा था। तब भी कुछ लोगों ने ऐसे ही हालात पैदा कर दिए थे। पंडित नेहरू ने उस वक्त कहा था कि हिंदुस्तान को हिंदू पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। संजय राउत का कहना है कि मुल्क मजहबी जुनूनियों के हाथ में नहीं जाना चाहिए, खा वह हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन आज बदकिस्मती से ये मुल्क उन्हीं के हाथों में चला गया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और RSS का अपने कारकुनान पर कंट्रोल खत्म हो गया है। इन तंजीमों का एक ही काम रह गया है और वो है फसादात कराना, मसाजिद पर हमले करना और हिंदू युवाओं को भड़काना। नाज़रीन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र में हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह की कब्र हटाने कार सेवा करने की खुली धमकी दी गई है।
बाबरी मस्जिद इन्हदाम की तारीख दोहराने का शर अंगेज बयान भगवा आतंकवादियों ने दिया है और भगवा आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। मैं बार बार कहता हूं कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से भगवा आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। नफरत और जात पात की सियासत करने वाली पार्टियों और शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमों ने हजरत औरंगजेब की मज़ार को हटाने के लिए मुहिम शुरू कर रखी है। कब्र न हटाने पर बाबरी मस्जिद की तारीख दोहराने की खुलेआम धमकियां दी जा रही है, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया के मौक़िफ़ से यह ज़ाहिर हो रहा है कि वो अमन व अमान में खलल डालने वाली इन तंजीमों के ओहदेदारान और कारकुनान पर लगाम कसना नहीं चाहती और इन तंजीमों को दानिस्ता तौर पर यानी जानबूझकर हुकूमत इन भगवा आतंकवादियों को खुली छूट दे रही है। यही वजह है कि इन आतंकियों के शर अंगेज बयानात देने और इक़दामात करने की आज़ादी इन्हें मिल चुकी है और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जानिब से कब्र हटाने के लिए रियासत भर में आंदोलन करने का ऐलान किया गया है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आज यानी 17 मार्च 2025 बरोज पीर को टीचर्स कमेटी स्टेट लेवल पर रियासत गिर पैमाने पर एहतजाज और आंदोलन करने जा रही है। बताया जा रहा है कि देहाती इलाकों में तालीमी निज़ाम को, एजुकेशन सिस्टम को तबाह करने और तलबा के तालीमी नुकसानात को रोकने के लिए 15 मार्च 2024 के सरकारी फैसले को फौरी तौर पर कैंसल करने के डिमांड को लेकर प्राइमरी टीचर्स कमेटी की जानिब से आज रियासत भर में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। राइट टू एजुकेशन एक्ट, हक़ तालीम कानून 2009 की दफ़ा 19 और 25 के मुताबिक पहली से 8वीं जमात के तलबा की तादाद के तनासुब से असातिज़ा की तादाद मुकर्रर की गई। इसलिए मुस्तक़बिल में तलबा के तालीमी नुकसान और तहफ़्फ़ुज़ के संगीन मसाइल पैदा होंगे। बहुत से तलबा बिलखुसूस लड़कियों की तालीम ठप हो जाएगी, इससे ड्रॉप आउट बढ़ेगा और तलबा तालीमी धारे से बाहर हो जाएंगे, जिसके खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए परेशानी का मरकज बन चुका है और उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर करने की जब भी कोशिश की, नतीजा मनफी ही निकला। जी हाँ, और अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये बयान काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के ताल्लुकात से मुताल्लिक सवालात के जवाब भी दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 1947 से पहले हर कोई आज़ादी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा था। उस वक़्त पॉलिसी साजों ने तक़सीम हिंद को कबूल कर लिया था। हिंदुस्तान के लोगों ने बड़े दर्द के साथ और भारी दिल के साथ कबूल किया कि अगर मुसलमान अपना मुल्क चाहते हैं तो उनको दे देंगे, लेकिन इसका नतीजा भी उस वक़्त जाहिर हो गया। इस कत्ल आम में लाखों लोग मारे गए। पाकिस्तान से लाशों भरी ट्रेनें आना शुरू हो गई। बहुत खौफनाक मनाजिर थे, लेकिन भारत का शुक्रिया अदा करने और खुशी से ज़िंदगी गुजारने के बजाय पाकिस्तान ने तसादुम का रास्ता इख्तियार किया। अब और किसी तरीके से वार जारी है। ये कोई नजरिया नहीं, दहशत गर्दों को एक्सपोर्ट करने का काम किया जा रहा है। पीएम मोदी ने पॉडकास्ट में कहा कि जब भी दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो पाकिस्तान का ताल्लुक कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। उन्होंने कहा कि 9/11 का बड़ा वाक़या अमेरिका में हुआ, इसका मरकजी मास्टर माइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पनाह ले रहा था। अब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए परेशानी का मरकज बन चुका है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, केदारनाथ धाम में अब गैर हिंदुओं के दाखिले पर पाबंदी लगाने की तैयारी हो चुकी है। इस बारे में वहां के मकामी एमएलए ने मालूमात दी है। उनका कहना है कि कुछ गैर हिंदू अनासिर केदारनाथ धाम की मजहबी अजमत को खराब करने के मकसद से वहां गोश्त, मछली और शराब पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसने कहा कि ऐसे लोगों की निशानदेही की जाएगी और वहां
आने से उन्हें रोका जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि हाल ही में इंचार्ज वजीर सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ में एक मीटिंग की थी जिसमें इस तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया गया था। इस इजलास में यह तजवीज़ भी पेश की गई थी कि ऐसे गैर हिंदुओं पर अफराद पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाए जो केदारनाथ धाम की तौहीन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मकामी लोगों, ताजिरों, होटल मालिकान और खैमा दुकान मालिकान के साथ एक मीटिंग उन्होंने की और इस मीटिंग में मकामी ताजिरों ने खुलकर कहा कि कुछ गैर हिंदू अफराद इलाके में गोश्त, शराब और दीगर ममनुआ अशिया लाने में मुलव्विस हैं। नाज़रीन, एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जहां चंद्रपुर जिले के नागभीड़ में गुज़िश्ता कल झील में एक बड़ा दर्दनाक और अफसोसनाक वाकया पेश आया। झील में तैराकी करने गए 5 दोस्त डूब गए और पुलिस ने उनकी लाशें निकाली। गहरे पानी का अंदाजा न होने पर सब के सब डूब गए। मकामी लोगों की मदद से पुलिस की टीम ने उनकी लाशें निकाली है। मरने वालों के नाम जनक गाविंदे, यश गाविंदे, अनिकेत गाविंदे, तेजस गाविंदे और तेजस ठाकरे बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि मरने वाले 5 दोस्तों का ताल्लुक चिमूर तालुका के 60 गांव कोलारी से है। हादसे के बाद इसकी इत्तला पुलिस को किसी ने फोन से दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। इस अफसोसनाक वाकये से पूरे जिले में सोग की लहर दौड़ गई है। यह खबर मैं इसलिए लगा रहा हूं कि जवानों को 100 नहीं 1000 बार सोचना चाहिए किसी ऐसी जगह पर नहाने और तैराकी करने जाने के लिए। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गोधरा फसादात के बारे में बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2002 के बाद से गुजरात में कोई बड़ा फसाद नहीं हुआ, क्योंकि उनकी हुकूमत ने, यानी मोदी का कहना है कि हमारी हुकूमत ने वोट बैंक की सियासत करने के बजाय इंतजामी उमूर पर, विकास पर तवज्जो दी। वज़ीर आज़म ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के अपने ओहदे से और अपने अहद से वाबस्तगी का इरादा करते हुए कहा कि उनकी छवि को दागदार करने की कोशिशों के बावजूद बिल आखिर इंसाफ की जीत हुई। उन्होंने कहा कि गुजरात में जहां एक साल में कई फसादात होते थे, वहां 2002 के बाद कोई बड़ा फसाद नहीं हुआ। हम वोट बैंक की सियासत नहीं करते, हम सबका साथ और सबके विकास की सियासत करते हैं। वज़ीर आज़म ने इस अरसे में इंटरनेशनल लेवल पर दहशत और तशद्दुद में इजाफे का हवाला देते हुए कहा कि 2002 के बाद गुजरात का इस्तेकाम उनकी हुकूमत के बेहतर तर्ज अमल का सबूत है। उन्होंने आलमी अमन, हिंदुस्तान के सकाफती वरसे और RSS के साथ अपने ताल्लुक पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि मेरी ताकत मेरे नाम में नहीं बल्कि 1.4 बिलियन हिंदुस्तानियों की पुश्त पनाही में है। जब भी हम अमन की बात करते हैं तो दुनिया हमारी बात सुनती है। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी ये भूल गए हैं कि लोग ये भी कहते हैं कि चोर के हाथों में चाबी थमा दी जाए तो ऑटोमेटिक चोरियां रुक जाती है। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट